Good morning to all of you. Class 8th, Subject Social Science, Chapter 5 When People Rebel 1857 and After. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 56 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। On 29 March 1857, a young soldier, Mangal Pandey, was hanged to death for attacking his officers in Bharakpur. तो 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with the fat of cows and pigs. 85 CPOs 85 CPOs were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9 March 1857. तो चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। ये 9 मई 1857 की बात है। The response of the other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. On 10th May, the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned CPOs. They attacked and killed British officers. They captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British and declared war on the Firangis. The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country. But who would rule the land instead? The soldiers had an answer to this question: the Mughal Emperor बहादुर शाह जफर। तो मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर दावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज़ अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे। लेकिन सवाल ये था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे। The CPS of Meerut rode all nights of 10 May to reach Delhi in the early hours next morning.
As news of their arrival spreads, the regiments stationed in Delhi also rose up in rebellion. तो मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। Again, British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. Triumphant soldiers gathered around the walls of the Red Fort where the Pasha lived, demanding to meet him. The Emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. तो जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजय सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेज़ों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वह जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर लिया। The aging emperor had to accept this demand. He wrote letters to all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. This single step taken by Bahadur Shah had great implications. बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की ये मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। The Mughal dynasty has ruled over a very large part of the country. Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal rulers. Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once more under Mughal authority. तो अंग्रेज़ों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुग़ल साम्राज्य का ही शासन था। ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुग़ल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार में भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुग़ल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वह मुग़ल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। The British had not expected this to happen. They thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die down, but Bahadur Shah Zafar's decision to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. Often when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It gives them the courage, hope, and confidence to act. अंग्रेज़ों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बादशाह शाह जफ़र ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को
कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इसमें उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इस लेसन जो मैंने अभी पढ़ाया है उसको फिर से आपने रीड करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।